Hello students, welcome back. Today we have to read the second part of 3 questions, the story written by Leo Tolstoy. Those children जिन्होंने पार्ट 1 इस क्लास का नहीं देखा है, 3 क्वेश्चंस का पार्ट 1 नहीं देखा है, वे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ से पार्ट 1 को देख लें एंड देन पार्ट 2 को देखें. So children, in part 1 we had read that there was a certain king who wanted to know the right time to begin everything, the right people to listen and the right work to do, the most important affairs to do. The king had 3 questions in his mind. Let me repeat. He wanted to know what is the right time to begin everything, who are the right people to listen to and whom to avoid, and what was the most important thing to do. So these were the questions which the king had in his mind, and he consulted every question to the scholars, but there was no satisfactory answer coming from them. So he decided to meet the hermit, the wise hermit who was very renowned for his wisdom. So children, he went there to the hermit and found that he was digging the earth. The king offered his help to the hermit and asked his 3 questions, put his 3 questions before him, but he didn't answer. After repeating his questions, even he didn't answer, and he made the king, he just brought the mind of the king towards someone who was coming, towards someone who was coming. Okay. Was coming to them running. He says, here comes someone running. He didn't answer the questions, but brings the attention of the king that here comes someone running. Let us see who it is. Today we have to go further in this story. The king turned around and saw a bearded man. The king turned around. Turn around means पीछे की तरफ मुड़ना, पीछे मुड़ना. So here king turned around and saw a bearded man. Beard जो दाढ़ी होती है उसको beard बोलते हैं. It is a part of our body. तो राजा पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं A bearded man come running out of the wood, जो जंगल के बाहर से दौड़ता हुआ आ रहा है. Wood means forest. The man held his hand pressed against his stomach. उसने अपने stomach में अपने हाथों को प्रेस किए हुए था. And blood was flowing from under them. और उन हाथों के नीचे से, कहीं से हाथों के नीचे से ब्लड फ्लो करता हुआ आ रहा था. When he reached the king, he fell fainting on the ground, moaning feebly. जब वो राजा के पास पहुंचा, वो भागता हुआ जंगल के बाहर से आया. कौन? Bearded man. और राजा तक पहुंचा. He fell fainting. Fainting means to become unconscious. To become unconscious. तो वो बेहोश होकर गिर जाता है. ऑन द ग्राउंड मोर्निंग फीबली, जमीन पर गिर पड़ता है और मोर्निंग कर रहा है. मोर्निंग का मतलब होता है ग्रोनिंग, यानी वो करा रहा है. फीबली, धीमे धीमे.
Let us see the next page. The king and the hermit unfastened the man's clothing. हर्मिट और किंग दोनों ने मिलकर के उसके कपड़ों को अंडू किया, अनफास्टेंड किया, खोला. द मैन्स क्लॉथिंग. देयर वॉज अ लार्ज वॉन्ड इन हिज स्टमक. अनफास्टेंड करने के बाद से क्या दिखता है? वॉन्ड, एक बड़ा सा जख्म दिखता है, इंजरी दिखती है इन हिज स्टमक. द किंग वॉश्ड इट एज बेस्ट एज ही कुड. राजा ने उसे बहुत अच्छे से वॉश किया, जितना अच्छे से कर सकते थे. एंड बैंडेज्ड इट. उसको बैंडेज किया, घाव को, उसकी मरहम पट्टी की. विद हिज हैंकरचीफ एंड विद अ टॉवेल द हर्मिट हैड. राजा ने अपने हैंकरचीफ और हर्मिट के टॉल से वहाँ बैंडेज किया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. लेकिन होता क्या था कि ब्लड बहना रुकता ही नहीं था. एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज. राजा बार बार उस बैंडेज को जो वहाँ लगाया उसको बदलते रहे. यहाँ रिमूव करना, हटाना, यहाँ मतलब बदल देना. सोक्ड विथ वार्म ब्लड. जब भी वो बैंडेज था पूरा गीला हो जाता था वार्म ब्लड से, उसके गर्म खून से, उसके ताज़े खून से. जैसे ही वो वेट होता, कंटेन सोक्ड मीन कंटेनिंग सम लिक्विड, तो जब भी वो कंटेन करता उसे राजा रिमूव कर देते, हटा देते. एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज्ड द वॉन्ड. उसको साफ करते एंड अगेन रीबैंडेज करते उस जख्म की. व्हेन एट लास्ट द ब्लड सीज्ड फ्लोइंग, सीज्ड हियर स्टॉप्ड. जब लास्ट में ब्लड जो है वो स्टॉप करता, ब्लीडिंग रुकती. द मैन रिवाइव्ड. रिवाइव मीन टू कम टू लाइफ अगेन, यहाँ पर होश में आना. एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. उसने पीने के लिए कुछ मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. मीनवाइल द सन हैड सेट. इस बीच इतना सब कुछ हो रहा था, इसी बीच सन जो था वो सेट हो चुका था, सूरज डूब चुका था. एंड इट हैड बिकम कूल. और अब वहाँ थोड़ी ठंडक फील हो रही थी. सो द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. राजा और हर्मिट ने मिलकर के, राजा ने हर्मिट के हेल्प से उसको कैरी किया और उसको हट में लाया, उसको ले किया ऑन द बेड. बेड पर उसको लेटाया. लाइंग ऑन द बेड द मैन क्लोज्ड हिज आईज. बेड पर जाते ही, लेटते ही वो जो बियर्डेड मैन था उसने अपनी आंखें बंद कर ली. एंड वॉज क्वाइट शांत, चुपचाप वो पड़ा रहा. बट द किंग वॉज सो टायर्ड विद हिज वॉक एंड विद द वर्क he had done. सबसे पहले तो राजा बहुत थक चुके थे अब तक, क्योंकि वो बहुत दूर वॉक करके आए थे, पैदल चले थे. एंड द वॉक ही हैड डन, जो काम उन्होंने किया था. एंड दैट ही क्राउच्ड डाउन. क्राउचिंग करना एक पोजीशन होती है बैठने की, जिसमें घुटने जो है वो सिकोड़ करके बैठना, मोड़ करके फोल्ड करके बैठना, बॉडी को घुटनों पे टिका करके बैठना. So that position is called crouched. So he crouched down on the threshold. King ने उस bearded man को बेड पर लेटाया और खुद आगे threshold पे, entrance पे. threshold का मतलब entrance, दहलीज कह सकते हैं आप. जो देहरी, जो दरवाजे का पर entrance होता है, घुसने की जगह जो होती है, उसको threshold बोलते हैं. राजा वहीं बैठ जाते हैं. एंड fell asleep. उन्हें नींद आ जाती है. So soundly that he slept all through the short summer night. वो इतने अच्छे से सोए, गहरी नींद में सोए. That he slept all through the short summer night. पूरी रात वो सोते रहे. When he awoke in the morning, it was long before he could remember. जब वो सुबह में जगे, awoke, got up, तो जैसे वो जगते हैं, it was long before he could remember. उनको बहुत समय लग गया याद करने में where he was, कि वो कहाँ है. And who was the strange bearded man lying on the bed. और ये bearded man कौन है जो कि बेड पे लेटा हुआ है. And gazing intently at him. वो जो bearded man है वो गेज कर रहा था. गेज करने का मतलब है to look fixedly in surprise. टकटकी लगा के देखना किसी को, तो वो टकटकी लगा के और बहुत ही इंटेंटली का क्या मतलब हुआ?
पेइंग फुल अटेंशन, बहुत ध्यान से देख रहा है किसको, राजा को, अठीम, विथ शाइनिंग आइज। शाइनिंग आइज किसकी आंखों कहा जा रहा है, बियर्डेड मैन के। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। बियर्डेड मैन ने बहुत ही कमजोर आवाज में, बहुत ही धीमे से कहा, फॉरगिव मी, मुझे माफ कीजिए। व्हेन ही सॉ द किंग वाज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जग चुके हैं, एंड वाज लुकिंग एट हिम, और बियर्डेड मैन को देख रहे हैं, तब उसने राजा से माफी मांगी। I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा, मैं तो आपको जानता नहीं, and have nothing to forgive you for, और इसलिए मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं आपको माफ करूं। You don't know me, but I know you. बियर्डेड मैन का क्या जवाब आता है कि You don't know me, but I know you. आप मुझे नहीं जानते, बट मैं आपको जानता हूं। I am that enemy of yours, मैं आपका वह शत्रु हूं। Who swore मीन कसम खाना, प्रण लेना, तो मैंने प्रण लिया हुआ था to revenge himself on you, कि मैं आपसे रिवेंज लूंगा। रिवेंज का मतलब बदला लेना। तो इस बियर्डेड मैन ने स्वेयरिंग की थी कि वो राजा से बदला लेगा, बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर। बिकॉज यू मीन्स किंग एग्जीक्यूटेड किल बाय गिविंग डेथ सेंटेंस। ठीक है, किसी को मौत की सजा देना उसको बोलते एग्जीक्यूट किया जाना। तो आपने क्या किया, एग्जीक्यूट किया हिज ब्रदर, उसके ब्रदर को। किसके ब्रदर को, इस बियर्डेड मैन के ब्रदर को किंग ने एग्जीक्यूट किया है। एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया है, ये लीगली अपने कब्जे में किया है। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट, मैं उसी व्यक्ति का भाई हूं। एंड आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट। ठीक है ना, इसको पता चला था बियर्डेड मैन को, वो बता रहा है कि मुझे पता चला कि आप अकेले ही गए हुए हैं हर्मिट के पास। एंड आई रिसॉल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक, और मैंने रिसॉल्व किया, डिसाइड किया कि आपसे वापसी के रास्ते में, आपकी वापसी के रास्ते में आपको किल कर दूं। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन बीत गया, आप लौटे नहीं। सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बुश, इसलिए मैं कहाँ से, अपने एम्बुश से बाहर आया। एम्बुश का क्या मतलब होता है, हाइडिंग प्लेस, छुपने की जगह। तो मैं अपने छुपने की जगह से बाहर आया टू फाइंड यू, आपको पाने के लिए, आपको ढूंढने। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड्स, लेकिन मैं सामने पड़ गया किसके, आपके बॉडीगार्ड्स के। एंड दे रिकॉग्नाइज्ड मी, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, पहचानना। तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे जख्मी कर दिया, मुझे इंजर्ड कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम देम, मैं वहां से भागा, उनसे भागा। एस्केप का मतलब होता है टू रन अवे, मैं वहां से भागा। बट शुड हैव ब्लेड टू डेथ, लेकिन यहाँ ब्लेड का क्या मतलब है, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग से बना हुआ है, थर्ड फॉर्म है ब्लीड का। तो ये क्या कहता है कि मैं वहां से भाग तो गया, लेकिन मेरा इतना खून बह जाता कि मैं मर जाता। आई शुड हैव ब्लेड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वॉन्ड्स, अगर आपने मेरे वॉन्ड्स की मरहम पट्टी नहीं की होती, ड्रेसिंग नहीं की होती, मेरे जख्मों को नहीं बैंडेज किया होता, तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने ही मुझे जीवन दिया। नाउ इफ आई लिव एंड इफ यू विश इट, अगर मैं जिंदा बचा तो, और अगर आपकी इच्छा हो तो, आई विल सर्व यू, सर्व मीन सेवा देना, सेवा करना, एज योर मोस्ट फेथफुल स्लेव, आपका सबसे विश्वासी स्लेव। स्लेव मीन दास होता है, सर्वेंट। तो उसने ऑफर किया राजा से, ऑफर किया, अभी तो परमिशन ले रहा है कि अगर आपकी इच्छा हुई तो मैं आपके यहाँ स्लेवरी करूंगा। एंड बीड माई सन्स डू द सेम, अपने बेटों को भी मैं
वैसा ही करने के लिए, आपका स्लेव बनने के लिए क्या करूँगा, ऑर्डर करूँगा, बिड मी ऑर्डर। फॉरगिव मी, फिर से वो माफी मांगता है। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजीली। राजा बहुत ही खुश हुए, ग्लैड मीन्स वेरी हैप्पी। राजा बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी आसानी से अपने दुश्मन के साथ उनका पीस हो गया था, मीन्स मित्रता हो गई थी। एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड, और उसको एक दोस्त के तौर पर भी उन्होंने पा लिया। इतना अच्छा दोस्त पाया, एक तो शत्रुता खत्म हुई और दूसरा कि फ्रेंडशिप भी हो गई। एंड ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड, उन्होंने न सिर्फ उससे बियर्डेड मैन को माफ किया बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने सर्वेंट्स एंड हिज ओन फिजिशियन, अपने डॉक्टर को भेजेंगे टू अटेंड अपॉन हिम। अटेंड अपॉन का मतलब क्या होता है, टू टेक केयर। तो उन्होंने कहा कि वो अपने पर्सनल जो फिजिशियन है या सर्वेंट हैं उनको भेजेंगे उसकी सेवा करने के लिए। एंड प्रॉमिस टू रिस्टोर हिज प्रॉपर्टी, उन्होंने बियर्डेड मैन को वचन दिया कि वो उसकी प्रॉपर्टी को रिस्टोर करेंगे, रिटर्न करेंगे। Having taken leave of the wounded man, the king went out into the porch and looked around for the hermit. अब wounded man से लीव लेकर के, यानी उसको विदा बोल करके, king went out into the porch. porch मतलब वो एक एरिया होता है जो किसी भी घर के एंट्रेंस के अंदर होता है, ठीक है ना, a small covered area at the entrance of a home. तो पोर्च, उसी पोर्च में जाते हैं किंग एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। वहाँ लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, वहाँ ढूंढते हैं, किसको ढूंढते हैं, हर्मिट को, क्योंकि उनको अभी अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर भी लेने थे। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर, ठीक है, वापस जाने यानी घर जाना, यहाँ घर जाने के लिए गोइंग अवे वर्ड यूज किया गया था। राजा जाने के पहले चाहते थे एक और बार टू बेग एन आंसर टू द क्वेश्चन ही हैड पुट। बेग का मतलब क्या है, बहुत एक्सट्रीम पोलाइटली वे में वो अपने आंसर को मांग ले। जो क्वेश्चंस उन्होंने पुट किए थे उनके। द हर्मिट वॉज आउटसाइड, हर्मिट बाहर थे, ऑन हिज नीज, घुटनों के बल, सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। वो जो एक दिन पहले डिगिंग का काम किए हुए थे, डिग का थर्ड फॉर्म, जो बेड्स, जो क्यारियां उन्होंने बनाए थे एक दिन पहले, उसमें वो क्या कर रहे थे, सोइंग सीड्स। हर्मिट वॉज सोइंग सीड्स। द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड, राजा उनके पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, अंतिम बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब दें, आंसर करें, वाइज मैन। You have already been answered, said the hermit. hermit ने क्या कहा, You have already been answered. आपको जवाब पहले ही मिल चुका है। Still crouching on his thin legs. अभी भी hermit अपने पतले पतले पैरों के बल घुटनों को सिकोड़ के बैठे हुए थे। And looking up at the king who stood before him. वहीं बैठे बैठे वो राजा की तरफ देखते हैं, look up करते हैं, जो कि उनके सामने खड़े थे। How answered? What do you mean? asked the king. राजा ने पूछा, कैसे जवाब मिला? What do you mean? आपका मतलब क्या है? Do you not see? replied the hermit. If you hadn't pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, but had gone your way, that man would have attacked you. क्या कहना चाहते हैं कि if you had not pitied my weakness yesterday, अगर आपको pity means to feel kind, अगर आपको मेरी दशा देख करके, मेरी वीकनेस देख करके कल दया नहीं आई होती, एंड had not dug these beds for me, और इन बेड्स को मेरे लिए नहीं खोदा होता, but had gone your way, वापस अपने रास्ते चले गए होते, the man would have attacked you. वो जो bearded man है जो रास्ते में छुप के अपने एम्बुश में था, वो क्या करता, would have attacked you, वो आप पर आक्रमण करता, आप पर अटैक करता, एंड यू वुड हैव रिपेंटेड फॉर नॉट हैविंग स्टेड विद मी,
और तब आप क्या कर रहे होते, उस समय पछताते, रिपेंट करते, टू फील सॉरी। पछताना, टू फील, एक्सक्यूज मी, टू फील सॉरी। तो तब आप पछता रहे होते फॉर नॉट हैविंग स्टेड विथ मी, कि आप मेरे साथ यहाँ रुके नहीं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या था, जब आप वो बेड्स को डिग कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, मैं सबसे इंपॉर्टेंट मैन था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। और मेरे साथ अच्छा करना, मेरी भलाई करना आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस था। Afterwards, when that man ran towards, the most important time was when you were attending upon him. उसके बाद जब वो आदमी हमारी तरफ दौड़ता हुआ आया, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तब था जब आप उसको अटेंड अपॉन कर रहे थे, जब आप उसका केयर कर रहे थे, ठीक है ना, देखभाल कर रहे थे। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम था। एंड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ट्स, अगर आपने उसके वॉन्ट्स को ड्रेस नहीं किया होता, ही वुड हैव डाइड, मर चुका होता वो, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, बिना आपके साथ शत्रुता खत्म किए वो मर चुका होता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। इसलिए ये काम, यानी वो बियर्डेड मैन का काम करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिजनेस था उस समय। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट। याद की रखो, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट। सिर्फ एक ही समय इम्पॉर्टेंट है, और वो समय कौन सा है, द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर, जब हमारे पास पावर हो किसी काम को करने का। ठीक है, जैसे राजा के पास उसकी जान बचाने का पावर उस समय था, तभी तो राजा बचा पाए। अगर राजा वहां प्रेजेंट नहीं होते, या फिर किसी और वजह से वो अक्षम होते, अनेबल होते उसको बैंडेज करने में, उसकी बैंडेज करने में, तो फिर हम कह सकते हैं कि राजा के पास पावर ही नहीं था। लेकिन उस समय राजा के पास पावर था। ठीक वैसे ही जब हर्मिट खुदाई का काम कर रहे थे, उस समय भी राजा के पास पावर था उनकी हेल्प करने की। तो सब ओनली टाइम व्हेन वी हैव पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज ही विद हुम यू आर। ठीक है ना, आप जिसके साथ हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही आदमी है। जिस समय भी जो आपके सामने हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर नो मैन नोज, क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं कि वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग विद एनीवन एल्स, क्योंकि किसी को पता नहीं कि कल क्या हो, अगले क्षण क्या हो, क्या वो रहेगा भी टू एवर हैव डीलिंग विद एनीवन एल्स, किसी और के साथ डील करने के लिए वो आगे रहेगा भी कि नहीं, कोई नहीं जानता। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर इज, और सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है, टू डू हिम गुड, जो हमारे सामने है उसका भलाई करना। बिकॉज फॉर दैट पर्पस ओनली अलोन वॉज मैन सेंट इन टू दिस लाइफ, क्योंकि सिर्फ इसी पर्पस के लिए, पर्पस का क्या मतलब होता है, एम, इसी एम के लिए क्या किया है, मैन वॉज सेंट इन टू दिस लाइफ। ठीक है, इसी दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों के साथ भलाई करने के लिए ही, एकमात्र इसी लक्ष्य के लिए मैन को, इंसान का जीवन मिला है। तो आपको आंसर मिला। आपने क्या सीखा, एक तो आपने सीखा, यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, मीन्स द मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट, प्रेजेंट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटली whatever the work, whatever the power we have, we should just try to perform it. And the person who is before us is the most necessary man. To do good to that person is the most important work. So this is a great philosophy. We come to know after reading this story that present time is very important. Presently what we can do, we should do, whom we can serve, we should serve, and what we could do for the person before us, we should do that. One more lesson we get from this story, that knowledge gained through experience is far superior to and many times more useful than the theoretical knowledge. कभी भी प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है, जो खुद हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो नॉलेज ज़्यादा
हमारे लिए यूजफुल होता है बजाय थ्योरेटिकल नॉलेज के। तो चिल्ड्रन, हम देखते हैं अगला जो प्रैक्टिस है इस स्टोरी का। आपको करेक्ट आंसर्स को टिक करने हैं, आप इन्हें खुद से टिक करेंगे। मैं इसके सॉल्यूशंस आपको अगली क्लास में प्रोवाइड कराऊंगी। फिर भी आप जो एक्सरसाइज ए है उसे खुद से करें, बी भी ट्राई करें, सी तो बिल्कुल खुद से करेंगे, डिक्शनरी की हेल्प लें अगर आप चाहें तो, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी डिस्कस करने वाली हूँ। हॉट्स, लाइफ स्किल्स and the writing skill, values and writing skill will also be provided in the next video. So try some of the exercises yourself first of all. उसके नीचे आपको दिख रहा है लियो टॉल्स्टॉय के बारे में, जो आप पढ़ें, बिकॉज ऑथर के बारे में एडिशनल नॉलेज रखना ये बहुत सही होता है लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे अगले वीडियो में हम आपको इन सभी प्रैक्टिसेस को, एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।